कैपिटल, तो मैं आज भूपेश आनंद आज आपके साथ थोड़ा सा और आगे जाने वाला हूं इन रिलेशन टू वर्किंग कैपिटल, और मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा और आपने उनके आंसर्स देने हैं. नो डाउट दोस क्वेश्चंस आई विल बी शोइंग यू विद द हॉक. आप लेकिन वायलेट, ग्लैम, बेकर कहीं से भी कर रहे हैं, टेंशन की बात नहीं है यार. कंसेप्ट तो सेम है ना, लॉजिक तो सेम है, आप घबराना मत. चलिए सर, मैं भूपेश आनंद आज स्टार्ट कर रहा हूं. इन द लास्ट लेक्चर मैं जस्ट थोड़ा सा रिवाइज कर दूं. I am just giving you glimpses of last lecture so that I can answer the I can question you some questions. First point is I discuss about working capital. मैंने पिछले लेक्चर्स में, लास्ट लेक्चर्स में I have given a brief introduction in regard to working capital. I told them that capital which is required for working purpose, for day-to-day purpose, for day-to-day operations, that is named as working capital. When I say capital, I mean पूंजी. If I use Hindi word, अगर मैं capital को हिंदी में देखूं तो इसका नाम है पूंजी. Punji is required for two reasons. One is for the long-term investments and second is for short-term investments. आपको जो पूंजी चाहिए होती है दो रीजंस के लिए चाहिए होती है. एक तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए और एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए. When I say पूंजी, I mean capital. It means I require capital for temporary requirements and I require capital for permanent requirements. So here we are discussing with the temporary requirements, and when I say temporary, it means it is working capital. And when I say working capital, the second point which I discussed in the last lecture was that working capital is current assets minus current liabilities. And when I say current assets, I have discussed in the last lecture that those assets which can be converted into cash within 12 months, 12 महीने में, because accounting cycle in America is also of 12 months, in London is of 12 months, पाकिस्तान में 12 महीने की, इंडिया में 12 महीने की. तो 12 महीने में जो कैश में कन्वर्ट हो जाए, that is named as current assets. Similarly, those obligations जो आपकी देनदारी है, which you have to pay because आपने क्रेडिट में सामान खरीदा था, you have to pay the expenses, so that is named as current liabilities. So I have given the examples in the last lecture. Cash equivalent, भगवान या भगवान जैसी, that is Paytm balance, that is Amazon balance, all that is cash equivalent. Then I discuss about account receivables, I discuss about inventory, I said you about prepaid expenses. All these are my current assets. Non-current assets are those assets which cannot change their shape, which do not change their shape within 12 months. For example, property, plant, equipment. करंट लायबिलिटीज के एग्जांपल्स बताए थे मैंने लास्ट लेक्चर में आप सबको. आप में से काफी सारे बच्चे ने लास्ट लेक्चर ज्वाइन नहीं किया या किया पता नहीं, रिवीजन कर रहा हूं. आई टोल्ड यू अकाउंट्स पेबल इज अ करंट लायबिलिटी. I told you that outstanding expenses, accruals are current liabilities because you have to pay within 12 months. Then the fourth point is, it is very important for a management accountant. For a management accountant, it is very important. I repeat, for a CMA USA, it is very important to estimate how much working capital, how much funds are required for day to day
working requirements, for day to day working requirements. So this is a question which you have to answer, you know. आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है दोस्तों, भाई और बहनों. आपको in this unit, specifically in working capital management, if I show you a Kingfisher airline case study, अभी दिखाऊंगा विजय माल्या का वीडियो. My main big question is that how much amount of working capital I require. आप मुझे बताइए, मॉर्निंग में आप घर से जब जाते हैं from your home to office, whether you check that how much hard cash you have or how much soft cash you have, बिना चेकिंग के चाहते हैं या चेक करते हैं? इट इज वेरी मच बट ऑब्वियस कि आप पहले चेक करते हैं एंड यू एस्टिमेट कि हाउ मच, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स टुडे. सपोजिंगली आपको मूवी देखने जाना है, तो मूवी में कितने पैसे लगेंगे? गर्लफ्रेंड के साथ जाना है, पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक, मोबाइल चार्जिंग, मेट्रो चार्जेस, ऑल दैट, यू नो. आप एस्टिमेट करते हो कि आज कितने पैसों की जरूरत है. बिल्कुल उसी तरह से एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट का मेन वर्क भी यही है, टू फाइंड आउट that what are the reasons, you know, how much working capital you require. Supposedly you are a management accountant of Apollo Tyres, आपकी वाइफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट है MRF टायर्स, आपका एक फ्रेंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है CA टायर्स. सारे टायर्स की बात कर लेते हैं. नाउ this company may have a different working capital, this may have a different working capital, and this company may have a different working capital. सबकी अलग अलग हो सकती है. जैसे एक फैमिली में हम सब डिफरेंट मेंबर्स हैं, सभी की लाइकिंग्स अलग होती हैं, डिसलाइकिंग्स अलग होती हैं. इफ यू गो इन अ रेस्टोरेंट, कोई मसाला डोसा मांगता है, कोई भटूरे छोले खाता है, यू नो, कोई पाव भाजी लेता है. इट डिपेंड्स अपॉन सो मेनी फैक्टर्स. Similarly, a requirement of working capital, it depends upon so many factors. So there are so many factors which affect working capital requirement of an organization. I repeat my golden words. As per CMA USA Part 2 examination, as per support package, it is important that as a management accountant, you should be aware of what are those factors. ऐसी कौन सी बातें हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट कर देती हैं. ये बातें हमने सीखनी है दोस्त. तो मैं आज आपके सामने बड़ी सारी प्यारी प्यारी सी बातें बताऊंगा. तो फर्स्ट इज नेचर ऑफ बिजनेस. आप कौन से बिजनेस में बिलोंग करते हैं? Whether you are a manufacturing company, whether you are a trading company, whether you are rendering services, whether you are manufacturing the products, क्या आप मारुति उद्योग हैं, क्या आप मारुति उद्योग के डीलर हैं? All have different requirements, you know, it depends upon the nature of the business. Next is which type of management approach you are following for estimating the working capital. Whether you are aggressive, management can be aggressive. Vijay Mallya is very aggressive. High risk. अभी हम देखेंगे what I mean by aggressive, what I mean by, you know, management philosophy. And we can have a conservative philosophy. Whether my company is a seasonal company, जैसे अभी अभी रक्षाबंधन का सीजन गया, तो हल्दीराम के अगर आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल ड्यूरिंग सीजन टाइम. ड्यूरिंग ऑफ सीजन आपको उतनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है. आपको पनीर, आपको ड्राई फ्रूट्स, आपको इट मींस यू रिक्वायर मोर इन द टाइम ऑफ सीजन्स. इफ यू आर अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ कोका कोला, ऑफ पेप्सी, it means you require more working capital in summer seasons as compared to winter. So it means the point is, I want to find out what are the reasons, you know, what are the factors which affect my working capital requirement. So I said nature of business, I said management approach, I said seasonal operations, I said your sales stability, कि आपकी सेल्स स्टेबल है या वेरी करती रहती है. ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं
जो अफेक्ट करती हैं आपकी वर्किंग कैपिटल को। आप मेरे साथ हैं? यस या नो तो बोल दीजिए। यस सर। देखो एक ही मैडम ने बोला और इतने सारे बच्चे, यस या नो तो बोलो। यस सर, वी आर देयर। यस सर। चलो Yes, एक क्वेश्चन करके दिखाओ मेरे को। कैलकुलेटर बाहर निकाल लेना और मेरे को क्वेश्चन करके दिखाना। ये मैंने आपके लिए हॉक ओपन कर दिया है, बट मैं सीधा उसी में आ रहा हूं। देखो, आई हैव डिस्कस इन द लास्ट लेक्चर। ये मैंने यूनिट 4 है, आराम से देख लीजिए। दिस इज यूनिट 4। Then we have covered net working capital in the last lecture. याद है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज मैंने डिस्कस किया था और आपको बताया था कि ये नेट वर्किंग कैपिटल है। जस्ट टोटल ऑफ करंट एसेट इज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल की बातें की थी, टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल एंड परमानेंट। जैसे मैंने अभी अभी एग्जांपल दिया हल्दीराम भुजिया वाला। मैंने कहा देयर इज 2 टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल फॉर हल्दीराम भुजिया वाला। वन इज परमानेंट वर्किंग कैपिटल, जो रक्षाबंधन है नहीं है, दिवाली है नहीं है, ईद है नहीं है, इन ऑल द 12 months he requires some working capital that is permanent, and if that is varying that is temporary. तो टेम्परेरी परमानेंट देखा हमने। आइए जी, ये क्वेश्चंस करके दिखाइए एक छोटा सा जल्दी से मेरे सामने। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन 84। आई थिंक आप सबको दिख रहा है, या थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर दूं या ठीक है? ये लो फॉन्ट बड़ा कर दिया। आप तो कुछ बोलोगे नहीं, मैंने खुद ही कर दिया। ड्यूरिंग द कंपनी अ कंपनी करंट एसेट्स इंक्रीज बाय, देखो क्या लिखा है, करंट एसेट्स इंक्रीज बाय $120, increased by current liabilities decreased by, then you have to calculate net working capital. कैलकुलेटर बाहर होने चाहिए, फॉर्मूला आपके माइंड में होना चाहिए। आपने मुझे करेक्ट आंसर बताना है। जिस बच्चे ने सबसे पहले बताया, हम कुछ प्राइस देंगे उसको। मतलब डी। क्या नाम है आपका? कृतिका। चलो कृतिका ने बता दिया। और बच्चा कोई बताए प्लीज। सर ऑप्शन ए, इंक्रीज्ड बाय $70। अच्छा, क्या नाम है आपका? दुर्गा। दुर्गा मैम ने बोला ए, कृतिका ने बोला डी। लड़ाई चल रही है, अभी देखेंगे कौन जीतेगा। और कोई बच्चा बताना चाहे? विच इज द करेक्ट आंसर? ए, बी, सी और सर डी। डी। क्या नाम है? आदित्य। चलिए, आदित्य ने भी, 2 बच्चे आ गए डी में। कृतिका और आदित्य आ गए डी में। दुर्गा है ए में। देखते हैं कौन जीतेगा। जो जीता वो सिकंदर, बाकी सब बंदर। आइए, अब देखिए, मैं अगर आपकी जगह होता ना तो उसको क्वेश्चन को करने के लिए मैं कुछ फिगर्स लेता। ठीक है, अज्यूम करते हैं, कह रहे हैं इंक्रीज बाय 120। ठीक है जी, तो 120 से बढ़ गए करंट एसेट्स। अच्छा, तो मान लेते हैं पहले थे 100 करंट एसेट्स और पहले थी 50 वर्किंग करंट लायबिलिटीज। तो पहले थी 50 वर्किंग कैपिटल। अज्यूम कर रहे हैं, आई हैव जस्ट टेकन द फिगर्स जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। अभी वो कह रहा है कि $120 से करंट एसेट्स बढ़ जाएंगे, तो अभी कितने हो जाएंगे? $220। और करंट लायबिलिटीज कितने से कम हो जाएगी? 50 से। तो 50 से कम हो जाएगी तो 0 आ गया। इसका मतलब अब वर्किंग कैपिटल कितनी हो जाएगी? 220। अब आपको ना क्वेश्चन ध्यान से सुनना है, पढ़ना है। कि क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है, वो जान के आपको कंफ्यूज करेगा। क्वेश्चन क्या रहा है, एंड द नेट वर्किंग कैपिटल विल बी, देखो, इंक्रीज बाय, डिक्रीज बाय, इंक्रीज बाय। इसका मतलब जितनी वर्किंग कैपिटल पहले थी उससे अब बढ़ जाएगी या कम होगी। दुर्गा को आता था,
लेकिन उसने ध्यान से दुर्गा ने पढ़ा नहीं. इंक्रीज बाय, आप चेक करो, पहले वर्किंग कैपिटल थी $50, अब हो गई $220. इट मीन्स इट इज इंक्रीज बाय $170. तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. मैं आ गया जी नीचे क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ. देखते हैं कौन है यहां पर. खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी. आइए देखें आज के लेक्चर में कौन है झांसी की रानी. आज देख लेंगे, अभी देख रहे हैं. मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं जी आपके लिए. आई वॉन्ट टू रीड क्वेश्चन 85. यस, मैं पढ़ रहा हूं. A company has current assets of $3 lakhs and a current liability of $2 lakhs. Company could increase its net working capital by सपोर्ट पैकेज का क्वेश्चन है. नीचे लिखा हुआ सीएमए अडॉप्टेड, मतलब ये सीएमए के पेपर में आ चुका है. अच्छा, वो सपोर्ट पैकेज भी डाउनलोड कर सकते हैं आप आईएमए की साइट से आराम से. देखिए आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है, ऑप्शंस देखनी है, फिर बताना है. ठीक है जी, आराम से. मैं चुप हूं, आप अपना आराम से पढ़िए. सर सी. बी सी. सी फॉर कैट. क्या नाम है आपका? कृतिका. चलो जी, कृतिका कहती है सी. मैंने के लिख दिया, सी क्या है. मैं फिर कह रहा हूं, आपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिकली फिगर्स लेकर. सर बी. है सर बी. बी. क्या नाम है जी? आदित्य. आदित्य जी बी में. मैंने ए का नाम लिख दिया बी ऑप्शन में. देखते हैं कौन जीता कौन हारा. और बाकी सब मरे हुए हैं क्या? ये ऐसे ही आगे कॉपी पेस्ट करने क्लास के अंदर. ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है. आपने लास्ट लेक्चर्स नहीं भी किए तब भी कर सकते हैं. कॉपी पेस्ट वाले कितने बच्चे बैठे हैं यहाँ? कॉपी पेस्ट जो कर तो लेंगे लेकिन पेपर एक बार भर. बताओ जल्दी. कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट. अब देखो बोलना ही बंद कर दिया. कॉपी पेस्ट जब नाम लिया बोलना ही बंद कर दिया. अब देखो जी, फर्स्ट ऑप्शन अगर आप चेक करें, पेमेंट ऑफ 30,000 50,000 अकाउंट्स पेबल. मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि आंसर ये तो किसी ने बोला भी नहीं है, भी नहीं आंसर. जब आप अकाउंट्स पेबल पे करेंगे तो एक तो अकाउंट्स पेबल कम हो जाएंगे और दूसरा कैश भी कम हो जाएगा. इट मींस करंट एसेट्स भी कम हो जाएंगे और करंट लायबिलिटीज भी कम हो जाएंगी. इसका मतलब दोनों कम हो रही हैं. यू गेटिंग अ पॉइंट? क्वेश्चन क्या है? इंक्रीज. इट मींस इससे मेरी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज नहीं होने वाली. पहली ऑप्शन तो हो ही नहीं सकती. दूसरा, रीफाइनेंस 50,000 शॉर्ट टर्म डेट विद लॉन्ग टर्म डेट. क्या मतलब हुआ? रीफाइनेंस मतलब आपने किसी को पैसे देने थे. डेट, यू हैव अ डेट, यू हैव अ ऑब्लिगेशन, you have to pay $50,000 but you don't have funds. तो आपने क्या किया? लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स इशू किए. कैश आ गया, कैश आ गया, लॉन्ग टर्म बॉन्ड दिखा दिए और उससे आपने शॉर्ट टर्म डेट पे कर दिया. इट मींस अगर आप ध्यान से देखें, कैश आ भी रहा है, कैश जा भी रहा है, तो कैश तो कैंसिल हो गया. शॉर्ट टर्म डेट चला, शॉर्ट टर्म डेट आपने कैंसिल कर दिया बिकॉज शॉर्ट टर्म डेट पे कर दिया. लॉन्ग टर्म डेट इज नॉट योर करंट लायबिलिटी. इट मींस अगर आप बी ऑप्शन देखें तो इससे क्या होगा? करंट एसेट्स इंक्रीज हो जाएंगे एंड करंट लायबिलिटीज विल डिक्रीज. अल्टीमेटली माय वर्किंग कैपिटल विल इंक्रीज. तो बी आंसर ठीक है. अभी मैं बताना चाह रहा हूं कि सी आंसर क्यों ठीक नहीं है. अब देखो ये लिखा हुआ टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट्स, परचेज ऑफ $50,000 ऑफ टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट फॉर कैश. अच्छा एक बात और बता दूं, आग तभी लगती है जब सूखी लकड़ियां और चिंगारी हो. इट मींस देयर आर टू प्री कंडीशंस फॉर फायर. सिमिलरली देयर आर टू कंडीशंस फॉर वर्किंग कैपिटल.
सुनना, एक आइटम नॉन करंट होनी चाहिए, दूसरी करंट होनी चाहिए, तभी वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज या डिक्रीज आएगा। दोनों करंट होंगी या दोनों नॉन करंट होंगी तो देयर विल नॉट बी एनी इंक्रीज और डिक्रीज। इस बात को ध्यान से याद रख लेना आप। मैं अभी करके दिखा रहा हूं सी ऑप्शन। आप बताओ जी, करंट एसेट्स बढ़े, करंट एसेट्स कम भी हुए, इट मींस देयर इज नो चेंज इन द करंट एसेट्स, और करंट लायबिलिटीज तो सेम ही है। थर्ड की बात कर रहा हूं। इट मींस देयर इज नो चेंज इन द वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज भी नहीं हुई, डिक्रीज भी नहीं हुई, इसलिए ऑप्शन सी ठीक नहीं है। ऑप्शन डी, कैलकुलेशन ऑफ 50,000 ऑफ अकाउंट रिसीवेबल्स। अब देखो, कैश है और अकाउंट रिसीवेबल्स हैं, दोनों करंट हैं। आपको सोचना भी नहीं है यार, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज भी नहीं होगी, डिक्रीज भी नहीं होगी, क्योंकि दोनों करंट हैं। अगर दोनों करंट हैं, दोनों नॉन करंट हैं, तो कभी कुछ होने वाला नहीं है। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो तभी होता है जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो। इट मींस एक आइटम नॉन करंट होनी चाहिए, दूसरी करंट होनी चाहिए। इस सिद्धांत को इफ यू यूज दिस कंसेप्ट, यू नो, यू कैन डू बिग बिग क्वेश्चंस, बड़े बड़े क्वेश्चंस कर सकते हैं, कुछ मुश्किल है नहीं वैसे। आई थिंक आप बात समझ गए जो मैं कहना चाह रहा हूं। आइए क्वेश्चन 87 करके दिखाइए। 87 87 87 87 87। आइए पढ़िए अपने आप और मुझे सॉल्व करके दिखाइए और बताइए क्या आंसर आना चाहिए। मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनना है, करके दिखाएंगे, जीत के दिखाएंगे। वर्किंग कैपिटल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। क्वेश्चन 82 82 82 82 82। ये करंट है और ये प्रपोज है। आपको ये पूछ रहा है द इफेक्ट ऑफ प्लांट एक्सपेंशन ऑन नेट वर्किंग कैपिटल विल बी। मतलब प्रपोज में प्लांट के एक्सपेंशन का डाटा डाला हुआ है। वैसे बता दूं, प्लांट को बाय करते हैं तो नॉन करंट होता है, ध्यान रखना। ठीक है जी, तो आप क्या करें, पहले करंट की वर्किंग कैपिटल निकाल दें और फिर प्रपोज वाले की वर्किंग कैपिटल निकाल दें, एंड देन यू विल फाइंड आउट इन दोनों का डिफरेंस क्या है। देन यू कैन सी दैट वेदर द इफेक्ट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। मैंने हिंट दी है। कैश करंट एसेट है, कैश करंट एसेट है। एक बच्चा हैरान हो गया, वो कहता है ये करंट एसेट है। मैंने कहा हाँ ये करंट एसेट है, थप्पड़ मारूंगा मुंह के ऊपर। अकाउंट्स पेबल करंट लायबिलिटीज, अकाउंट रिसीवेबल करंट एसेट्स, इन्वेंटरी करंट एसेट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज करंट एसेट्स, मॉर्गेज पेबल करंट लायबिलिटीज, फिक्स एसेट्स इज नॉन करंट। ना तो करंट है ना करंट लायबिलिटी है। चलो अब तो कर लो। सर आंसर बी है सर। अच्छा, आंसर बी कह रहे हैं भाई साहब। आप वर्किंग कैपिटल बताना करंट की कितनी निकाली आदित्य जी? सर 5,55,000। अच्छा, और उसकी अपना प्रपोज की? प्रपोज की 5,25,000। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ 1-2 मिनट सब बच्चों का, सबको करने दीजिए। दुर्गा, लीजो, लीजो साहब आंसर दो। तो कर रहा हूँ क्या? कैलकुलेटर बाहर निकाल लो, थप्पड़ मारूंगा जिसे मैं। कैलकुलेटर नहीं होगा जो मोबाइल फोन से करेगा, नॉर्मल कैलकुलेटर से करो। मोबाइल तो अलाउड भी नहीं है वहां पर, कभी स्पीड नहीं बढ़ रही क्योंकि आप मोबाइल से कर रहे हो। सर ऑप्शन बी, डिक्रीज बाय $30,000। क्या नाम है आपका? दुर्गा। बी, बी कह रहे हैं, बी।
हाँ, B4 बॉल। चलो आदित्य और दुर्गा, दो बच्चों का आ गया ये आंसर यहाँ का। और देखते हैं कितने माई के लाल है। देखते हैं माई के लाल और माई की लालियां कितनी है। कृतिका जी, माई की लाली। Sir, B. नहीं, बी, बी फॉर बॉम्बे। Yes, sir. चलो Decreased by 30,000. ठीक है, कृतिका का भी यही आंसर आ गया। तीन बच्चे यही कह रहे हैं। मुझे तो लगता है यही आंसर है। मुझे तो कुछ हो रहा है। मुझे तो लग रहा है यही आंसर होगा। और देखते हैं लिजो। लिजो बताओ ना यार, मैं आपकी वेट कर रहा हूं। ये आंसर बोल रहे हैं बच्चे। ये वर्किंग कैपिटल आ रही है, ये प्रपोज्ड है। लिजो बताओ क्या आंसर होना चाहिए। हम सब वेट कर रहे हैं आपकी। तो रुको सर, मैंने मोबाइल में ही कर रहा है इसलिए हो रहा है। तभी तो कह, मेरे को तो पता चल गया था उसी समय। इतना टाइम तो लगना ही नहीं था। आपको करना ही नहीं मोबाइल से, पेपर में कैलकुलेटर से है। अभी से प्रैक्टिस डालो। टाइम दे रहा हूं, करो। मोबाइल फोन को तो बिल्कुल बंद कर दो थोड़ी देर के लिए। भैया मैंने वैसे करंट एसेट लिख दिया। इसको जमा करना है, इसको जमा करना है, इसको जमा करना है, इसको जमा करना है, इसको ऐड करना है और इसको सब्ट्रैक्ट करना है। बाकी तो और कुछ करना नहीं। तो मेरे को अपने घर ले जाओ। ये क्या तो प्लस ये प्लस है? बी है सर, डिक्रीज बाय 30। ठीक है, बी। करेक्ट आंसर इज बी। 555 साबुन लाना, 5,55,000। This is the working capital of current and this is proposed. It means if I do my plant expansion, my working capital will decrease by 30,000 and which is prima facie evident from these calculations. ठीक है जी। तो आपको एक आइडिया दे दिया कि आपको पेपर में क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। बहुत बढ़िया। आगे चलिए, मैं आज जो बताने वाला हूं, अभी कैश मैनेजमेंट नहीं बता रहा, अभी वर्किंग कैपिटल रिलेटेड आई वांट टू टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट। लिख लीजिए, 5 स्टार्स लगाइए इसमें। 5 स्टार्स। ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल। देखो कितनी बढ़िया फोटो बनाई है, ऑपरेटिंग साइकिल। अब है क्या ये ऑपरेटिंग साइकिल? आइए लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस। थोड़ा सा लिखेंगे फिर आगे चलेंगे। तो आप लिखिए ऑपरेटिंग साइकिल। सभी बच्चे लिख रहे हैं ऑपरेटिंग साइकिल। टाइम पीरियड रिक्वायर्ड, सब लिख रहे हैं टाइम पीरियड रिक्वायर्ड फ्रॉम कन्वर्टिंग कैश टू कैश। सर ये क्या लिख दिया? अभी बताऊंगा। कैश को कैश में कन्वर्ट करने के लिए कितना समय लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आप में से सीएमए यूएसए एक बंटी है जो बंटी कर रहा है, और एक बबली है जो बबली कर रही है। बबली ने भी सीएमए यूएसए ज्वाइन किया और बंटी ने भी सीएमए यूएसए ज्वाइन किया। बंटी हैज कंप्लीटेड हिज सीएमए यूएसए इन 12 months और बबली ने 18 months में कंप्लीट किया। मैं अब आपसे एक बच्चे से पूछूंगा, लिजो आप बताओगे और कोई नहीं बोलेगा। आप किसको मार्क्स ज्यादा देते हो, बंटी को या बबली को? अच्छी तो बात बंटी कौन को। कर रहा है, बंटी या बबली? बंटी। वाई बंटी? 12 मंथ्स में उसने कंप्लीट किया। उससे क्या हो गया फिर आगे? क्या कैसे पता चला कि 12 महीने ठीक है? मतलब बंटी के पास जल्दी से गाड़ी आएगी, बंटी का अपना घर जल्दी बन जाएगा और बंटी लाइफ में जल्दी हैप्पी हो जाएगा। बबली भी होगी लेकिन बबली 6 महीने के बाद होगी। तो आपने कहीं ना कहीं कहा शॉर्टर द ऑपरेटिंग साइकिल,
shorter the operating cycle, better it is. सब बच्चे लिख लो, 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका है इसी कंसेप्ट पे अभी हाल में. शॉर्टर ऑपरेटिंग साइकिल जितनी छोटी होगी उतना बढ़िया. अब एक बच्चा कहता है जी ऑपरेटिंग साइकिल है क्या? मैंने कहा ये बताया नहीं मैंने, कैश से कैश में. कहता समझ नहीं आया. मैंने कहा भाई कैश का कैश टू मतलब, फॉर एग्जाम्पल यू हैव कैश इन द बिगिनिंग. You are a Maruti Suzuki manufacturing entity. You have purchased raw material. Then you have converted into work in progress. Then you have converted to finished goods. Then you have sold goods on credit. And then again they have paid cash. And minus accounts payable. आराम से साइकिल लिखो. देखो जी, कैश से रॉ मटेरियल, फिर रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोग्रेस, फिर वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स से फिर अकाउंट्स रिसीवेबल्स, और अकाउंट रिसीवेबल से कैश. तो मैंने क्या लिखा था? कैश टू कैश. पहले तो चित्र बनाओ. प्लीज प्रिपेयर अ फ्लो चार्ट. दिस इज ऑपरेटिंग साइकिल. ऑपरेटिंग साइकिल. एक बच्चा खाली बैठा है, वो कहता है उसने रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले लिए, बेवकूफ है वो. करना है उसको, सबने लिखना है. ऑपरेटिंग साइकिल को सिंबॉलिकली लिखो. रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड. अभी सबने होल्डिंग पीरियड है इसलिए मैंने होल्डिंग पीरियड लिखा नहीं. रॉ मटेरियल स्टेज या रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड प्लस वर्क इन प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड प्लस फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड plus account receivables holding period. That is how much credit period you are giving and how much credit you are receiving. So O is equal to R plus W plus F plus AR minus AP. And I can calculate this in days or in weeks or in months as the case may be. अब सवाल आता है कि हाउ वी कैन कैलकुलेट रॉ मटेरियल स्टेज, वर्क इन प्रोग्रेस स्टेज, फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड, अकाउंट रिसीवेबल एंड अकाउंट्स पेबल. पहले बताओ यहां तक समझ आ गया? अरे यस या नो तो बोल दो भैया, यहां तक समझ आ गया? Yes, sir. Yes, sir. अब सब बच्चे क्या करेंगे, पहले मेरे साथ यहां पर एक फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट बनाएंगे. सब बच्चे बनाएंगे फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट, क्योंकि मुझे जो बताना है उसके लिए यू शुड हैव अ नॉलेज ऑफ कॉस्ट शीट. Then only you can understand what I want to say you. Please prepare a cost sheet along with me. आप पहले चेक करो कि मैं लाइंस किस तरह से ड्रॉ कर रहा हूं और फिर बनाना. ये लो ऐसी शीट जिसमें कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं. डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस. And if I total these three, it is named as direct cost or prime cost. इसके बाद ऐड करो factory overheads, or I can say it as production overheads, or I can say it as manufacturing overheads. Indirect material, indirect labor, indirect expense incurred in the factory, ये ऐड कर दिया. तो ये जो फिगर आ गई इसका नाम है ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट. यूएसए अमेरिका में इसको प्रोडक्शन कॉस्ट भी कह देते हैं.
तो आप घबराना मत, टेंशन मत लेना। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट और ग्रॉस प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस ऑफिस ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड्स प्लस ऑफिस ओवरहेड्स, अमेरिका में इसको टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। अमेरिका में you name it as total cost of production plus in America when I add selling overheads, then this figure is cost of sales. Yes, in America, New York, California, sales. This is cost of sales and this is profit. This is profit or loss. आराम से लिख लो जी भाई और बहनों। भाई लिख लिया हो तो जस्ट टेल मी यस आई हैव रिटन इट, इतना बोल देना, फिर मैं आगे चलूंगा। Yes, sir. No doubt. एक ही बच्चे ने लिखा है कुछ और भी लिख लिया भैया? यस या नो तो बोल दो। सर लिख लिया। अब एक बच्चा सोच रहा है ये कैसे, क्यों, वाई यू हैव प्रिपेयर्ड कॉस्ट शीट, हॉक में नहीं है, ग्लेम में नहीं है, वायले में नहीं है, बेकर में नहीं है, लेकिन भूपेश आनंद की बुक में है। मैं बताऊंगा अभी आपको कि क्यों मैंने बनाया। पहले आराम से इसको पूरा ध्यान से देखो। पहले प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट किया मैंने। अब दूसरी बात आई थिंक विच आई वांट टू टेल यू इज, कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स? अभी आप में से कुछ बच्चों ने आईएमए की रजिस्ट्रेशन नहीं कराई, तो आप सभी के सभी रॉ मटेरियल है अभी आईएमए के लिए। आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया, एक आध ग्रुप दे दिया, पार्ट दे दिया, बीच में डांस कर रहे हैं आप वर्क इन प्रोग्रेस हैं आईएमए के लिए। But if you have cleared both the parts, you have completed your work experience, you will be getting a membership number. It means you are 100% complete, you are 0% complete, and you are in between 0 to 100. It means you are work in progress. My dear friends, my dear friends, my dear gods, I want to tell you one thing very important. My dear friends, I want to tell you that this raw material is related with raw material purchase department. You should know the relationship. मैं आपको बोलता हूं आलिया भट्ट कपूर, आप बताइए आपके माइंड में क्या आता है? एकदम क्या आया? आलिया भट्ट के बाद क्या आया?
आलिया भट्ट के बाद क्या आया माइंड में? एक बच्चा कहता कैटरीना आई, थप्पड़ मारू, कैटरीना नहीं रणबीर आएगा, क्योंकि आलिया का अब रणबीर से डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो रॉ मटेरियल का डायरेक्ट रिलेशनशिप है परचेजेस के साथ, फिनिश गुड्स का डायरेक्ट रिलेशनशिप है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ, और वर्क इन प्रोग्रेस का रिलेशनशिप है प्रोडक्शन कॉस्ट के साथ। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं, फर्स्ट पॉइंट आई एम राइटिंग डाउन, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो। बचपन से करते आ रहे हो। अच्छा, कभी भी कोई रेशो होती है तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर करते हैं। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो। क्या आप में से कोई बच्चा बता सकता है कि इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो का क्या फॉर्मूला होना चाहिए आपके हिसाब से? सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी। बहुत ही बढ़िया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंटरी। कितनी अच्छी बात करी है हमारे आदित्य जी ने। अब मैं आदित्य जी से एक बात और पूछूंगा, मान लो ये 4 टाइम्स आ गया, तो आदित्य जी 4 टाइम्स का मतलब समझा दो, क्या मीनिंग है 4 टाइम्स का? आपके पेपर में आ चुका है। सर इसका मतलब है कि हम इन्वेंटरी को जल्दी टर्नओवर कर रहे हैं 4 टाइम्स है एज कंपेयर टू मार्केट। अच्छा, इसका मतलब ये है, ठीक है, मार्केट से कैसे कंपैरिजन हो गया? मार्केट तो पता नहीं अभी आपको, आपने सर बोला, हाँ बोला ठीक है, पहली बात ठीक बोली है कि एक कंपनी अपनी इन्वेंटरी को 4 बार 4 टाइम्स टर्न करती है, मतलब पुराना सामान बेच देती है, नया खरीद लेती है, पुराना सामान बेच देती है, नया खरीद लेती है। अज्यूम करते हैं कि एक दूसरी कंपनी है, उसका 6 टाइम्स एट इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो। बताओ कौन सी कंपनी अच्छी है दुर्गा जी, 4 टाइम्स वाली या 6 टाइम्स वाली? सर 6 टाइम्स वाली। बहुत ही अच्छी बात, बहुत बढ़िया। अब बता दुर्गा मैडम ने क्या किया, उन्होंने एक बात करी जल्दबाजी में, बहुत आंसर ठीक दे दिया। उन्होंने क्या किया, यहां पर इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड निकाल लिया कि पहली कंपनी में कितना इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड था, और दूसरी कंपनी में भी इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड निकाल लिया, और झटपट आंसर दे दिया। दूसरी कंपनी देखो, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड कैसे निकालते हैं, कैसे? 4 टाइम्स है, मुझे मंथ्स में निकालना है, तो 12/4 कर दिया मैंने, 3 मंथ्स आ गया। और अगर ये निकालना है तो 12/6 कर दिया, तो 2 मंथ्स आ गया। और अगर डेज में करना है तो 365/4 कर दो, और यहां 365/6 कर दो। वो कोई टेंशन नहीं है, अभी मानते हैं मंथ में निकालना है। मतलब 3 महीने का पीरियड है इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड, और 2 महीने का पीरियड है इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड दूसरी कंपनी में। ये इसके फॉर्मूलेज बड़े बड़े दिए हुए हैं, ग्लेम, वाइले, हॉक, बेकर। आपने बिना फॉर्मूले के किया, दुर्गा मैडम ने बिना फॉर्मूले के किया, और अभी मैं जो बताऊंगा वो भी बिना फॉर्मूले के बता दूंगा। कोई फॉर्मूला रटना नहीं है भाई साहब, लॉजिक समझना है, लॉजिक समझना है। जैसे मैं आपके सामने इसको दूसरे सेंस में कहना चाहूं तो ये बोलूंगा, सपोज करते हैं ये आपके सामने 2 कंपनीज मैंने रखी हैं, एक एमआरएफ टायर्स है, दूसरी एटलस साइकिल है। इसका इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो अभी अभी मैंने एक का लिया था 4 टाइम्स, और दूसरी कंपनी का लिया था 6 टाइम्स। मैं उसी एग्जांपल को कंटिन्यू कर रहा हूं। तो 4 टाइम्स का मतलब है, इट इंप्लाइज, अब ये बात हॉक, ग्लेम, वाइले कहीं नहीं लिखी होती, इट इंप्लाइज इन 12 months, because accounting period is of 12 months,
4 times old inventory is converted into new inventory. It means it also implies that MRF Tire is selling their inventory in a gap of 3 months. आराम से पहले बताओ, ये लॉजिक समझ आया आपको एमआरएफ टायर्स का? अरे यस या नो तो बोल दो, टू करते जा रहे हो। यस या नो तो बोलो। यस सर। अब एटलस साइकिल का कौन सा बच्चा बताएगा? लीजो आप बताओ। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स है लीजो। जैसे मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है, इसी के साथ साथ वाली स्टेटमेंट बताओ यहाँ पे क्या आएगी लीजो, जल्दी से क्या लिखेंगे? इट इंप्लाइज इन 12 मंथ्स। आगे बोलो। It implies in 12 months 6 times. बहुत बढ़िया। 6 times the old inventory is being converted into new inventory. New inventory. चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट बता दो तो मैं मान जाऊंगा आपको समझ आ गया। ये बोलो इसका क्या लिखेंगे यहाँ पर? पढ़ लो पहले, मैंने एमआरएफ के लिए क्या लिखी, फिर एटलस के लिए बताओ। It implies that the Atlas is selling their inventory good turnover ratio into 2 months, 6 months. Sorry. ना देयर इन्वेंट्री इन अ गैप ऑफ, मैंने यहाँ पे गैप लिखा है। हाँ, gap of. ऑफ यहाँ पे 3 मंथ्स है, तो यहाँ पे कितना गैप है? ध्यान से 6. बताना, ऊपर देख लो एक बार। 2 months. हाँ अब ठीक बोला आपने, पहले गलत बोला था। 2 मंथ्स। अब बताओ एटलस अच्छी है या एमआरएफ अच्छी है लीजो? Sir, Atlas. क्यों एटलस क्यों अच्छी है भाई? Sir, 2 months के अंदर कर रही है सर। इसका मतलब एटलस की प्रोडक्ट की डिमांड है, Right. एटलस की प्रोडक्ट की क्वालिटी है, एटलस की प्रोडक्ट की मार्केटेबिलिटी अच्छी है, तभी तो जल्दी सामान बेच रही है। आप बताओ अगर आप ड्रग्स देखो तो कैसे बिकती है, फटाफट लाइन लग के बिक जाती है क्योंकि बड़ी डिमांड है। इट मींस इट शोज दैट ह्यूज डिमांड इज देयर। और इसको निकालने का एक फॉर्मूला भी आप सबने कर लिया, इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड। देखो फॉर्मूला कर लिया आपने, इज इक्वल टू 12 अपॉन इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो। आप ये फॉर्मूला हॉक में, बेकर में, ग्लैम में देखेंगे तो लिखा होगा, जबकि इस फॉर्मूले को रटना ही नहीं है। मैं तो कहता हूं बिना फॉर्मूले के कर सकते हो, लीजो ने तो बिना फॉर्मूले के किया, गैप ऑफ 2 मंथ्स। चलो पहले बताओ ये बात सबको समझ आ गई? फर्स्ट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो समझ आ गया, और इसकी हेल्प से हमने इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड भी कैलकुलेट कर लिया। कैसे निकाला? 12 अपॉन रेशो, और लॉजिक से भी कर सकते हैं, कोई फॉर्मूले के बिना भी। नेक्स्ट लिखो, अकाउंट्स 5 रेशोस करनी है, आज 2-3 रेशोस तो कर ही लेंगे। अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। क्रेडिट सेल्स, इसकी मोहब्बत क्रेडिट सेल्स के साथ होती है। कृतिका जी कहाँ हो? गायब हो गई कृतिका जी। सर यही है। क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स। कृतिका जी आपने वो जो यूनिट 1 रिस्क रिटर्न का था और जो इंटरनेशनल फाइनेंस का यूनिट 6 था, वो मिला करा आपने नहीं किया अभी तक? सर वही कर रही हूँ। कल मोबाइल में तो मिला ही नहीं था, मोबाइल ऐप में नहीं चला था, पर आज मिला है तो अब कर रही हूँ। रिस्क रिटर्न की मैंने 2-3 वीडियोस देख ली हैं। उसके बाद आपने वो इंटरनेशनल फाइनेंस भी करना है, समझ आ गई आपको? यूनिट 6 की। यस सर, यस सर, यस सर। और उसके बड़े बड़े क्वेश्चंस करने हैं, नहीं तो मैं डांटूंगा।
यस सर। हेलो, क्रेडिट सेल्स लिखो, क्रेडिट सेल्स अपॉन अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। ये 8th क्लास के बच्चे को बता रहे हैं आजकल। मान लेते हैं 6 टाइम्स आ गई। दुर्गा, आप बताओगे इसका मतलब, 6 टाइम्स का मतलब बताओ दुर्गा। मतलब क्रेडिट अकाउंट्स रिसीवेबल मीन्स इन 6 टाइम मीन्स के 12 महीने में टोटल 12 महीने के वो 2 महीने के गैप में वो कैश वो लोग रिकवर कर ले रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। ये दुर्गा के लिए क्लैपिंग कर रहा हूं और किसी के लिए नहीं। थैंक यू सर। 2 महीने के अंदर अंदर वो अपना कैश रिकवर कर लेते हैं। मतलब 6 बार टर्न हो रहा है, डेटर्स 6 बार टर्न हो रहे हैं, डेटर्स 6 बार टर्न हो रहे हैं एक साल में। इसका मतलब क्रेडिट पीरियड आप 2 महीने का दे रहे हो, क्रेडिट पीरियड इज ऑफ 2 मंथ्स। अब कृतिका बताएगी। मान रहे हैं कि ये कंपनी है, ये वाली कंपनी डाबर है और एक कंपनी पतंजलि है। इसका क्रेडिट पीरियड, पतंजलि का क्रेडिट पीरियड है 1 मंथ और डाबर का है 2 मंथ। बताओ भाई कृतिका, डाबर अच्छी या पतंजलि अच्छी? सर पतंजलि। हाँ, पतंजलि क्यों अच्छी है बताओ, आंसर तो ठीक है। वाई पतंजलि, वाई नॉट डाबर? सर क्योंकि वो जल्दी कलेक्शन कर रहे हैं अपने फंड्स का, जल्दी साल में उनका जो अकाउंट्स रिसीवेबल जो है वो जल्दी टर्न्स आ रही हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ज्यादा अच्छी बात ज्यादा बताई है। नंबर ऑफ टर्न्स निकाल वो कर ठीक है, लेंगे एक साल में। ठीक है। तो कृतिका एक्चुअली में पता है क्या कहना चाहती है हम सबको? वो ये कहना चाहती है कि पतंजलि इज गिविंग अ लोअर क्रेडिट पीरियड और पतंजलि हैज अ लोअर एवरेज होल्डिंग पीरियड। It means Patanjali product has more demand in the market, and that's why they are giving at 1 month. And Dabur product is not so much quality, and they are giving it for 2 months. It means lower the credit period, lower the account receivables ratio, holding period, better it is. तो मैंने और कृतिका ने जाने अनजाने में आपको एक फॉर्मूला बता दिया, दुर्गा ने भी बता दिया, कृतिका ने भी बता दिया। एवरेज या अकाउंट्स रिसीवेबल होल्डिंग पीरियड, आहा आहा आहा, इज इक्वल टू 12 या जो भी अपॉन अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। फॉर्मूला करना नहीं है आपको, लॉजिक समझ आ गया है, इसलिए फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, फॉर्मेलिटी निभा रहा हूं बस, करना वरना नहीं है। लॉजिक ही पता चल गया, कितना के याद कर, कुछ याद ही नहीं करना, तो लॉजिक समझ आ गया। शॉर्टर the accounts receivable holding period, better it is। लो जी लो, 5 रेशोज बतानी है, 2 तो बता भी दी और आपको याद भी हो गई। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी। आपने भी खूब लड़ना है अमेरिका से, पास होकर दिखाना है पहले अटेम्प्ट में, बार बार डॉलर नहीं देने इनको फिरंगियों को। shorter the account receivables holding period, better it is। तो मैं तीसरी रेशो में आ गया, बाकी 2 आप घर में करना, अब मैं तीसरी करके कंप्लीट करूंगा आज। अकाउंट्स पेबल रेशो, टर्नओवर रेशो, या खाली रेशो भी लिख सकते हैं, टर्नओवर भी लिख सकते हैं। क्रेडिट अकाउंट्स पेबल होते हैं क्रेडिटर्स, तो क्रेडिट परचेज से रिलेट करते हैं। अपॉन
अपॉन, कौन सा बच्चा बताएगा अपॉन में क्या है? अपॉन क्रेडिटर्स या अकाउंट्स पेबल। मान लेते हैं ये आ गया जी 12 टाइम्स, तो लिखो इट इंप्लाइज suppliers are giving a credit of 1 month. मैं एक बच्चे से पूछूंगा, ध्यान से वो बच्चा बताएगा। एक कंपनी एबीसी, दूसरी कंपनी XYZ, एवरेज पेबल टर्नओवर रेशो इसकी तो है 12 टाइम्स जो अभी अभी ऊपर लिखी है, इसकी है 6 टाइम्स जो अभी मैं बता रहा हूं। आदित्य आप बताओगे कौन सी कंपनी अच्छी है, एबीसी या XYZ? सर एबीसी। ध्यान से सोच लो भाई साहब। एबीसी क्यों अच्छी है, चलो ये बताओ। आप ये देखो एबीसी को यहां पर उधार कितना मिल रहा है, सप्लायर कितना उधार दे रहे हैं एबीसी को, बोल ही नहीं रहे। हाँ, सर 1 मंथ। और यहां पर सप्लायर्स कितना उधार दे रहे हैं XYZ को, 2 मंथ्स। अब बताओ कौन सी कंपनी अच्छी, एबीसी या XYZ? मतलब किसकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा मार्केट के अंदर, किसकी रेपुटेशन ज्यादा मार्केट के अंदर, सर किसकी ज्यादा XYZ। है? XYZ। हाँ, इसका मतलब जब आपने पे करना है तो लॉजिक अलग लगेगा। आपने रेक्टिफिकेशन नहीं करनी, हायर दिस हायर दिस हायर दिस, आपने जल्दबाजी की, आपको आता था। इसका मतलब अकाउंट्स पेबल में लोअर द रेशियो बेटर इट इज। इन्वेंट्री टर्नओवर में, अकाउंट रिसीवेबल्स टर्नओवर में हायर द रेशियो बेटर इट इज, बिल्कुल ठीक सिद्धांत है। क्योंकि जितनी टर्नओवर ज्यादा होगी उतना डिनोमिनेटर ज्यादा आ जाएगा, और जितना डिनोमिनेटर ज्यादा आएगा कोफिशिएंट उतना कम आएगा। एक बच्चों को समझ नहीं आया क्या बोल गया मैं, बड़ी हाई फाई बातें बोल गया। आदित्य समझ आया क्या बोला मैंने अभी? यस सर। अच्छा, और दूसरी बात अकाउंट्स पेबल में जितनी लोअर होगी वो ज्यादा बेटर होगी, क्योंकि उससे दिखता है कि आपके लिए कितनी रेपुटेशन है आपकी मार्केट में। क्योंकि ज्यादा रेपुटेशन होगी तो सप्लायर आपको ज्यादा उधार देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो 3 रेशोज मैंने कराई हैं, आगे लिखो, आगे लिखो। वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड, प्रोडक्शन कॉस्ट से मोहब्बत होती है जिसकी, प्रोडक्शन कॉस्ट अपॉन वर्क इन प्रोग्रेस। अभी कॉस्ट शीट कराई थी तो उसमें बताया भी था। और लास्ट है जी फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड, फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड। और मैंने बताया था अभी फिनिश गुड्स की रिलेशनशिप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से होती है, डिवाइडेड बाय फिनिश गुड स्टॉक। लो जी लो, ऑपरेटिंग साइकिल के 5 रेशोज भी आ गई जी। अभी क्वेश्चन कर लेते हैं, काम खत्म है जी, खूब लड़ी, काम खत्म। ये देखो ऑपरेटिंग साइकिल, कैश कन्वर्जन, कैश फ्लो, कैश से इन्वेंटरी, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस,
फिनिश गुड्स, अकाउंट रिसीवेबल माइनस अकाउंट्स पेबल। ये देखो आपके सामने चित्र बना हुआ है, चित्र रूपा। अब ये फॉर्मूला आपने रट लिए, रटने नहीं है, लॉजिक समझ लिया आपने। तो ये क्या है, अकाउंट्स रिसीवेबल्स होल्डिंग पीरियड, आपने लॉजिक समझ लिया। नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ वीक्स या नंबर ऑफ मंथ्स अपॉन रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, आपने लॉजिक वैसे समझ लिया। कुछ याद नहीं करना भाई साहब, ये कितने बड़े बड़े फॉर्मूले दिए हैं, आप सबने लॉजिक समझ लिया है, कुछ याद करना ही नहीं है आपको, तो वैसे याद हो गया है। आइए एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखें और हमें समझ आ जाएगा कि हमें कितना समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 88 मैंने आपके सामने रख दिया है, पढ़ना शुरू कर दीजिए भाई साहब। एक बच्चा आगे पीछे देख रहा होगा था, पता नहीं सर तो देख नहीं रहे, मैं क्या पढ़ूं ना पढ़ूं। बेवकूफ है वो बच्चा, वो एग्जामिनेशन फीस 2 बार पे करेगा। एवरेज एज ऑफ इन्वेंटरी इज 90 डेज, मतलब इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड इज 90 डेज। सर सी। सी, कृतिका ने बोल दिया, अभी देख लेते हैं। एवरेज एज ऑफ अकाउंट्स पेबल इज 60 डेज, इसका मतलब एवरेज पेबल होल्डिंग पीरियड इज 60 डेज। It means you are getting a credit period of 60 days from your suppliers. Average age of receivables is 65 days. It means you are giving a credit of 65 days. You have to calculate cash flow cycle. आराम से, कुछ मुश्किल है ही नहीं जब किया इरादा। सर सी। सी, आदित्य का भी आंसर सी। लिजो, कहाँ हो तुम लिजो, आंसर बताओ, बताओ लिजो। सर क्या फॉर्मूला लगेगा सर? देखो अभी मैंने कहा ऑपरेटिंग साइकिल किसके बराबर होता है, आर प्लस डब्ल्यू प्लस एफ प्लस ए आर माइनस एपी, ये बताया था, एक फॉर्मूला लिखा था आपने। हाँ लिखा था सर। अच्छा, इसमें अब वर्क इन प्रोग्रेस है ही नहीं, छोड़ दो। फिनिश गुड्स नहीं है, छोड़ दो। जो है वो लिख दो। होल्डिंग पीरियड, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, अकाउंट रिसीवेबल्स होल्डिंग पीरियड, अकाउंट्स पेबल होल्डिंग पीरियड। और क्या करना है, कैसे निकालते हैं साइकिल, एसेट्स का पीरियड जमा कर दो, लायबिलिटीज का कम माइनस कर दो। ओके। और क्या, बताओ अब तो बताओ। एक मिनट सर। तो 95 ये आ गया, देखो 90 प्लस 65 माइनस 60, तो 95 आ गया भाई साहब, बिल्कुल ठीक बोला लियो तुमने। प्रैक्टिस करनी है, देखो मैं फिर रिपीट करता हूं। हम सबके ड्रीम्स हैं बड़े बड़े, जॉब में इंक्रीमेंट चाहिए, ये चाहिए, नाम के आगे सीएम में यूएसए चाहिए, उसके लिए खून देना है। खून देते नहीं आप लोग, बातें करते हो बस बड़ी बड़ी। और अपने लिए करना भाई साहब, मेरे लिए तो करना नहीं। ये देखो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, आईसीएम में अडेप्टेड है, ये लो पेपर में आया हुआ ये। नहीं समझ आई, समझ आई नहीं आई? यस सर, आ गया। होमवर्क लिखो जरा पहले तो, मैं आप सबसे नाराज हूं। लिखो होमवर्क, पहला होमवर्क ये है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। करके दिखाना है। अगर अगली क्लास अटेंड करनी है अगले शनिवार की, तो करके दिखाना, ठीक है? क्या करना है, एक तो यूनिट 4 हॉक से, या जो भी मटेरियल है आपके पास, ग्लैम, वाइले, बेकर, कुछ भी, एक बार इसकी फटाफट रीडिंग करनी है यूनिट 4 की। और मैंने इसमें जो कराया उस कंसेप्ट को टिक करना है। और इसमें अभी 1-2 कंसेप्ट और हैं जो करने हैं आपने, जैसे कैश मैनेजमेंट, इसको पढ़ना, अकाउंट रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, बस ये 2 चीजें पढ़ लेना, बाकी मैं कराऊंगा। अच्छा, इसके बाद मेरे YouTube, जिन बच्चों ने लेक्चर्स नहीं लिए अभी तक मेरे, कोई घबराने की बात नहीं, आप YouTube में जाना, प्लेलिस्ट में जाना, वहां पे प्लेलिस्ट में
सेक्शन बी की प्लेलिस्ट है, उसमें ये सारे लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हुए हैं, वहां से देखना। और तीसरी बात, ये जो हॉक के क्वेश्चंस हैं जो मैं अभी करा ही रहा हूं आपको, कुछ तो कराए मैंने, इनको थोड़े से प्रैक्टिस करना। भाई ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं होंगे, बट कोशिश तो करो, ट्राई तो करो। होमवर्क लिखा ही नहीं कि एक बच्चे ने तो। यूनिट 4 कैश मैनेजमेंट, अकाउंट रिसीवेबल्स मैनेजमेंट पढ़ना है। यूट्यूब की प्लेलिस्ट में 5-6 वीडियोस देखने हैं और हॉक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है।